Hello. Yes, sir, you are audible. Right. Okay. Uh, we were doing trigonometric equations we were discussing it. Yes, sir. Do you have any questions and all in that exercise? Yes, sir, I have some doubts. Okay. Uh, 1 second. Right. Tell me which questions. Sir, exercise 3 comprehension based question. 1 second. Like there Exercise are 3, comprehension based. इसमें कुछ साइन इनवर्स ये सब दिया. Right. Okay. The question is saying uh, let S1 be the set of all those solutions of the equation. S1 is set of all solutions to the equation 1 plus a cos theta 1 plus a cos theta times cos of 2 theta minus b cos of 2 theta minus b is equal to 1 plus a cos 2 theta times cos of theta minus b. 1 plus a cos 2 theta times cos of theta minus b. Set of all the solutions to the equation which are independent of a and b. Which are Yes, independent of a and b. And S2 are the set of solutions which are dependent on a and b. Right? yes, sir. Which are dependent on a and b. Okay, fine. The sets S1 and S2 are given by, and what condition should we impose so that S2 is non-empty? Okay, we have to think of finding the sets first, then we can think of other things. Yes, So first of all, how can we get a solution which is independent of A and B? Think about that part. Can you figure out a way to get a solution which is independent of A and B? So first thing to do would be to first simplify the equation a little bit, right? हाँ सर. Without simplifying the equation, उसको simplify किए बिना कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कर सकते हैं, right? Yes, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होगा. 1 plus, okay, I'll do it on the next screen. 1 plus a cos theta cos 2 theta minus b. 2 theta minus b is equal to 1 plus a cos theta into cos theta minus b. 1 plus a cos 2 theta into cos theta minus b. तो यहाँ पे we can expand the left hand side. You can say it is cos theta cos 2 theta minus b plus a cos theta into cos 2 theta minus b, right? Is equal to cos of theta minus b plus a cos 2 theta cos of theta minus b, right? yes, sir. Okay. Then if I multiply by 2, then I can use identities everywhere, right?
yes. 2 क्यों कर रहे हैं? ये 2 cos c cos d वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ राइट? हाँ, प्रोडक्ट है। सो इसमें cos c plus d plus cos c minus d होगा, राइट? हाँ सर। सो cos c plus d हो गया 3 थीटा माइनस b प्लस cos c माइनस d हो गया cos ऑफ थीटा माइनस 2 थीटा प्लस b, सो b माइनस थीटा, राइट? यस सर। प्लस a टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा? cos ऑफ दिस प्लस दिस इज cos 3 थीटा माइनस b, माइनस। सेम चीज, प्लस a टाइम्स cos ऑफ थीटा b माइनस थीटा, राइट? यस सर। इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस b प्लस यहाँ पे a टाइम्स cos ऑफ, ऐड करोगे फिर से 3 थीटा माइनस b प्लस a टाइम्स cos ऑफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर थीटा प्लस b, राइट? थीटा प्लस भी, हाँ। यस। राइट। तो एक चीज देख रहे हैं कि ये टर्म तो कैंसिल हो रहा है साफ, हाँ राइट? सर। और 3 थीटा माइनस बी है, cos b माइनस थीटा और cos थीटा माइनस बी आर सेम थिंग्स, राइट? हाँ यस। बिकॉज इवन फंक्शन है cos, so यस doesn't सर। matter, so 2 gets cancelled. Now I am left with this term, one term here and one term here, right? यस सर। Okay. और ये दोनों टर्म का कॉस्ट टर्म सेम ही है एक्चुअली, राइट? सो हाँ सर। basically it is becoming cos of 3 theta minus b माइनस ए को इस साइड लाए कि नहीं? ओके, वन सेकेंड। ए कहाँ कहाँ है? ए किस किस में है? इसमें है और इसमें है। ओके, मे बी वी हाँ शुड ग्रुप द टर्म्स विथ ए टुगेदर, वी शुड नॉट, या वी शुड नॉट मिक्स इट। यहाँ पे ए हाँ। वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे और ये वाले टर्म्स जिसमें ए नहीं है उसको एक साइड करेंगे। सो विल गेट दिस इज इक्वल टू ए कॉमन cos ऑफ थीटा प्लस बी माइनस cos ऑफ बी माइनस थीटा, राइट? यस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2, this plus this, so 4 theta minus 2b by तो 2, so 2 theta minus b यस। and sin d minus c by 2, right? यस सर। So this minus this, theta डी। minus b minus 3 theta, minus minus कट गया वो, minus 2 theta by 2, right? माइनस। यस। माइनस थीटा आ रहा है तो माइनस साइन थीटा हो गया वो, करेक्ट? हाँ सर। इज इक्वल टू ए टाइम्स 2 साइन ऑफ दिस प्लस दिस, तो ऐड करेंगे तो 2b आएगा, सो साइन b, और साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, सो b माइनस थीटा माइनस p माइनस थीटा, सो माइनस 2 थीटा फिर से आ रहा है बाई 2, सो माइनस थीटा तो फिर से आ रहा है, माइनस। तो हाँ ये हो रहा है, राइट? सो वी आर गेटिंग बेसिकली 2 कट गया, माइनस साइन कट गया, और वी आर गेटिंग साइन थीटा टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस b is equal to a sin b sin theta, right? यस सर। So now it is clear what will happen now when we try to solve this equation, right? यस। एक सॉल्यूशन है, जब साइन थीटा ही जीरो हो जाता है तो दोनों साइड जीरो हो जाएगा, राइट? हाँ सर। साइन थीटा इज जीरो, थीटा इज इक्वल टू n pi, then both sides are zero without any condition on a and b, right? हाँ। It doesn't depend on a and b. If sin theta is zero, the equation is true, right? यस सर। If sin theta is not zero, then you can cancel this and this, right? And यस then सर। you can solve this and this and get an answer of theta, but it depends on A and B now, right? हाँ सर। This is our set S1, the answers which are independent of A and B. S2 will come when I solve this and this, right? ओके। हाँ। यस।
तो उसमें जैसे ही तुम अपना रूल लगाओगे उसमें ऑटोमेटिकली तुमको वो जनरल सॉल्यूशन विथ इनवर्स आ जाएगा. हाँ सर. You will get 2 theta minus b is equal to n pi plus minus 1 power n sine inverse of this, right? Okay. Yes sir. 2 theta minus b is equal to n pi plus minus 1 power n sine inverse of a sine b, right? Oh yes sir. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर. हाँ सर. तो थीटा का सॉल्यूशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, राइट? हाँ यस सर. It will look complicated and all, but that is your S2. This is your S1. Now you should try and finish the problem yourself. ओके यस. हो जाए. वो हो जाएगा थोड़ा सा करोगे तो. हाँ सर. For S2 to be non-empty, ये कंडीशन सोचोगे कब होगा कि S2 में empty सेट ना हो जाए S2, राइट? थिंक अबाउट इट. S2 के लिए होना चाहिए था कि साइन 2 थीटा माइनस बी इज इक्वल टू ए साइन बी, राइट? यस सर. S2 एम्प्टी सेट तब होगा जब ये चीज 1 से बड़ी होगी या 1 से माइनस 1 से छोटी होगी. हाँ क्योंकि इनइक्वालिटी के कारण. If this is greater than 1 or lesser than minus 1, in that case, there is no solution. हाँ In यस. that case, S2 is an empty set. So we don't want that to happen. So for S2P to be non-empty, we can say mod of A sin B should be less than equal to 1. ओके सर. Right? यस सर. Okay. So you can finish the rest of it. Next ओके क्या doubt सर. है? एक्सरसाइज 4A का फिफ्थ नंबर. Okay. 4A, fifth one. Okay. If alpha and beta satisfy the equation, if alpha and beta satisfy the equation a cos 2 theta plus b sin 2 theta is c. A cos 2 theta plus b sin 2 theta is equal to c. Then prove that cos square alpha plus cos square beta. Prove cos square alpha plus cos square beta is equal to a square plus ac plus b square divided by a square plus b square. ये हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो पैटर्न है ऐसा पैटर्न तभी इसमें वही स्टैंडर्ड मेथड है ना, ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है. हाँ सर. इसमें रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेना है डायरेक्टली बिकॉज दैट विल मेक इट वन पर्टिकुलर एंगल, राइट? ओके. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ कॉमन टेक्निक. हाँ इज सर. इट? हाँ, क्या बोल रहे मैं तो हो? सिंप्लीफाई करने लगा था. नहीं, वही तो गलत कर रहे हो ना. देखो, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है हमको. अगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसमें cos 2 थीटा और sin 2 थीटा सिंप्लीफाई करके तो बहुत अनोइंग हो जाएगा. हाँ सर. उसमें तो कुछ चांस ही नहीं होने का. यहाँ पे तुमको बोलना है कि अगर दो टर्म्स अलग अलग टाइप के हैं cos और sin तो इक्वेशन हो नहीं सकता इजिली सॉल्व. हमको चाहिए कि एक sin या cos हो जाता अगर लेफ्ट हैंड साइड पे. यस. What is a way to convert this type of expression to a single sin or cos? This is the way, हाँ. right? यस सर. तो इसमें अब बोलेंगे, मान लो इसको बोल देते हैं sin alpha. No, not alpha. Let's put it as p right now. इसको बोल देंगे cos p then, right? कॉल पे. हाँ सर. So it will become sin of p plus 2 theta, right? हाँ सर. और Root ये over रूट. this is equal to this. So we are getting sin of p plus 2 theta is equal to c by root over a square plus b square, right? यस सर. Okay, great. ये इक्वेशन अब चेंज होके ये इक्वेशन बन गया है जहां पे हमको पता है कि tan ऑफ p इज इक्वल टू a बाय b, राइट? यस सर. इक्वेशन चेंज होके ये बन गया है. हम लोग को सॉल्व क्या करना था? इक्वेशन वाज ऑन थीटा, राइट? ठीक. यस सर. थीटा.
थीटा के इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा, राइट? हाँ सर। करेक्ट। यस। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज, यहाँ पे अगर अल्फा डाल दो या बीटा डाल दो तो दिस इक्वेशन इज ट्रू, राइट? यस सर। तो इसके अगर दो रूट्स हैं तो तुम सोचो कि दोनों रूट्स ऐसे होंगे कि साइन का इक्वेशन है ना, साइन इज इक्वल टू समथिंग, तो यूजुअली क्या होता है साइन में, ऐसे रूट्स होते हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है। हाँ। और दोनों रूट्स ऐसे होते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू पाई, हाँ सर। राइट? यस। बेसिकली यू कैन से वन रूट एंड द नेक्स्ट रूट, दे विल एड अप टू पाई, राइट? यस सर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि it will be such that alpha plus beta should add up to pi, right? यस सर। So we can say we have sine of p plus 2 alpha is this, sine of p plus 2 beta is this. Uh, Maybe I'm going on the wrong track here. One second. पूछना पड़ेगा कि इसमें क्या सिंप्लीफाई करें। हाँ, इनको प्रूफ क्या करना है, cos square alpha plus cos square beta. Okay. So what I have right now is sine of p plus 2 alpha, sine of p plus 2 beta. So maybe I have taken the wrong approach. Because equations का कोई easy property से तो हो नहीं रहा है directly. यस सर। I think the way they have said it, it feels like इसको theory of equations type के form में बनाना पड़ेगा। जो तुम कर रहे थे वही सही था। तो फिर आंसर हो जाना चाहिए था ना तुमसे। सिंप्लीफाई करो क्वाड्रेटिक बन रहा था। तुमने क्वाड्रेटिक नहीं। बनाया था कुछ? नहीं सर, क्वाड्रेटिक तो नहीं बना था, क्योंकि कॉस टू थीटा को लिख दिया था ये, क्योंकि सबको कॉस में लाने का ट्राई किया था, फिर वो यहाँ से साइन टू थीटा का टू साइन थीटा कॉस थीटा किया था, हम्म। एंड देन साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए एक बार स्क्वायर करना पड़ा था, ताकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखना। तो यहाँ पे ऐसा होगा, फिर यहाँ पे सी माइनस ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? करेक्ट। हाँ सर। इसमें कॉस थीटा के टर्म्स में आ सकता है वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर, यहाँ पे टू ए सी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नाउ एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ कॉस का इक्वेशन, राइट? यस। और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, राइट? यस। ओके, सो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन बना देना है। थियरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो हाँ सर। फोर्थ डिग्री इक्वेशन दिख रहा है बन रहा है, तो टर्म्स लिखते जाएंगे। इधर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा, और प्लस ए स्क्वायर एक टर्म आएगा, माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा एक टर्म आएगा, माइनस फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस टू ए सी, राइट? यस। और इधर फोर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा, राइट? यस। तो अगर इसको एक साइड में करोगे तो आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा, राइट? यस। कॉस क्यूब थीटा का कोई टर्म ही नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा के काफी टर्म्स हैं, तो वो हो रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा इस साइड जाके, सो माइनस कॉमन, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए सी प्लस फोर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? हाँ सर। और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी कॉन्स्टेंट है, राइट? यस सर। तो हो तो रहा है, ये इक्वेशन बन गया ना।
अच्छा हाँ। ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, सिंपल। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को टी मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट। अच्छा हाँ सर। सम टी स्क्वायर माइनस समथिंग टी प्लस समथिंग, राइट। यस सर। टी के रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर थीटा के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो टी के टर्म्स में क्या रूट्स हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। हाँ सर। टी का ही रूट्स है ना अल्फा बीटा, हाँ हाँ। मतलब थीटा के रूट्स है अल्फा बीटा, टी वाज दिस। अल्फा बीटा है सो टेक्निकली इस इक्वेशन का रूट्स है cos square alpha cos square beta. और कॉस स्क्वायर बीटा हाँ। So sum of the roots is this by this with a negative sign, so negative negative goes away. So therefore sum of the roots is 4a square plus 4ac plus 4b square divided by 4a square plus 4b square. यस। So ये theory of equations का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल ही तरीका, तो सिंपल ही, तुमने भी ये सब किया ही है, उसके बाद रुक क्यों गए? सर वो फोर्थ पावर आ गया, फिर सोचा कि दो रूट्स हैं तो उसके बाद। हो रहा है सब, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हाँ सर। फोर्थ पावर हो रहा है लेकिन क्वाड्रेटिक बन रहा है, उसको सिंपली कन्वर्ट हो रहा है अच्छे से। ये यस। ऑपरेशन समझ में है कि फोर्थ पावर से क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक से उसके दो हाँ हाँ। रूट्स। हाँ सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। यस। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 4830 नंबर। 1 3। यस सर। सॉल्व फॉर एक्स साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा, साइन 3 अल्फा 4 साइन अल्फा टाइम्स साइन एक्स प्लस अल्फा टाइम्स साइन एक्स माइनस अल्फा, where alpha is a constant not equal to n pi. Alpha is not equal to n pi. Solve for x. यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट, हाँ सर। बाय द साइन आइडेंटिटी स्क्वायर दिस ए इज माइनस दिस। साइन। हाँ फिर ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, राइट। यस सर। और यहाँ पे हो रहा है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, राइट। यस सर। एवरीथिंग को एक साइड में ले जाएंगे, 8 साइन क्यूब एक्स और आई थिंक माइनस, वहाँ पे अल्फा होगा ना सर। थ्री कहाँ साइन पे? अल्फा माइनस। ओ हाँ, इस साइड सब अल्फा है। 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ओके। और इधर एक्स भी, ओ ये भी अल्फा था, राइट। अल्फा था यस। ओके, तो हो रहा है 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये तो और भी इजी होगी। अच्छा थ्री, इतना आसान क्वेश्चन कैसे नहीं बन गया? सर, मैंने भी वही गलती कर दिया था, वो साइन एक्स ले लिया था उसका। तो ये अब हो रहा है ना, हाँ हाँ साइन सर अब। अल्फा इज नॉट एन पाई, तो ये कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हाँ जीरो सर नहीं अब। है वो। हाँ अब ये हो जाए। कुछ है ही नहीं इसमें, बस केयरलेस हाँ मिस्टेक नहीं करना है। हाँ। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन सॉरी, एक्सरसाइज 4B का थर्ड नंबर। क्या? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट ऑफ कॉट 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4,
प्लस रूट ऑफ √3 cos x plus sin x minus 2 x plus sin x minus 2 is equal to sin 3x by 2 sin 3x by 2 minus √2 by 2, राइट? यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा ही ट्रिक है, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल ट्रिक भी नहीं है। जब भी तुमको कोई रूट्स वूट्स दिखे तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि क्या रूट्स डिफाइंड है, क्या डोमेन में है, इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है डोमेन का। समझ रहे हो ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्योंकि रूट्स के अंदर का चीज पॉजिटिव होना चाहिए फॉर रियल रूट्स। हाँ ग्रेट है कहना है। यहाँ पे कुछ खास बोल नहीं सकते क्योंकि कॉर्ड तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो इसीलिए यस। इस वाले में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे अभी, राइट? यस डायरेक्टली, बस लेकिन सेकंड इस वाले में। वाले में तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। हाँ क्यों? सर। क्योंकि √3 cos x प्लस साइन एक्स का वैल्यू किस रेंज में होता है? ओके हाँ वो तो एक क्वेश्चन था। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ सर वो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी वही वाला प्रॉपर्टी से इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, राइट? स्क्वायर। हाँ सर। If it is always less than equal to 2, this part will always be less than equal to 0, right? ऐसा होगा, राइट? यस हाँ sir। क्या ये पॉसिबल है कि ये लेस देन 0 हो जाए? नहीं नहीं वो तो रूट के अंदर है। तो ऐसा जब पॉसिबल ही नहीं है तो द ओनली थिंग इन विच द इक्वेशन मेक सेंस इज व्हेन √3 cos x plus sin x is exactly equal to 2, right? अच्छा। वो तो हाँ सर। इजी सॉल्यूशन आ जाएगा, कौन से केसेस में ऐसा होगा, राइट? ओके। हाँ सर। We'll divide by 2. We'll say it is √3 over 2 cos x plus 1 by 2 sin x is equal to 1. And this is basically sin pi by 3 plus x is ओके। equal to 1, right? यस सर। So you'll get pi by 3 plus x should be n pi plus minus 1 per n into pi by 2, right? Correct? हाँ। हाँ सर। The lowest possible one will be when n is 0, when it is pi by 2 exactly, and x will be pi by 6, right? हाँ हाँ सर। Now, ओके। उस केस में ये वाला पोर्शन ऐसे ही वैनिश कर जाएगा हाँ ये तो जीरो हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन में लेट्स थिंक ऑफ ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज, अभी लोएस्ट वाला केस नहीं लेते हैं। लेट्स से x is equal to, okay, maybe we should just check the lowest one and see if pi by 6 works, right? pi by 6 ओके। काम कर रहा है कि नहीं वही देख लेते हैं पहले। तो pi by ओके। 6 काम कर रहा है कि नहीं, देखो pi by 2 और कॉट pi by 2 0 होता है। हाँ। यहाँ पे हो गया 1/4, ये भी 0 हो गया, राइट? यस सर। यहाँ पे पाई बाय 6 फाइव। इंटू 30 डिग्री इंटू 3/2, 45, it is 0 here also. Pi by 6 automatically works, right? यस। So when they are asking for only principal solution, I don't have to worry about other solutions, right? यस सर। But obviously I can find all the other solutions also. All the other solutions are solutions of this equation, that's it. यस। As soon as this equation happens, this is becoming 0. Then automatically things are working out. यस। So the whole question is solved if you focus on the domain. If you don't focus on the domain and all, then you will keep doing random things. फिर तो कुछ कुछ करते चलोगे इधर उधर, यस सर। इक्वेशन सॉल्व करना ही नहीं है, यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे डिफाइंड है। और ये कैसे आइडिया आएगा? कभी भी रूट्स हो तो सबसे पहले वही चीज देखा जाता है। अब मैं समझ? तो ये स्क्वायरिंग का कुछ बनाने लगा था, परफेक्ट स्क्वायरिंग। हाँ, तो तुमको ये पता नहीं है, किसी ने बोला नहीं है तुमको, कभी भी रूट्स हो, मॉड्यूलस हो, कुछ 1/समथिंग हो, हर समय सबसे पहला चीज देखना होता है इक्वेशंस में कि वेयर इज इट डिफाइंड।
इक्वेशन को ब्लाइंडली सॉल्व करने के चक्कर में आगे नहीं बढ़ना है, पहले देखना है कि इक्वेशन का डेफिनेशन कब है, यस सर। राइट? डू यू ये अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर, समझ गया। राइट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? 8 नंबर इसका। ओके, 1 second, just hold on for a minute, 1 second. ओके। Okay, so cos of pi into 3 power x minus 2 cos square pi into 3 power x, 2 cos square pi into 3 power x plus 2 cos 4 pi into 3 power x minus cos 7 pi into 3 power x is equal to sine of pi into 3 power x plus 2 sine square pi into 3 power x minus 2 sine 4 pi into 3 power x plus 2 sine pi into 3 power x plus 1 pi into 3 power x plus 1 minus sine 7 pi into 3 power x। ओके, सो सबसे पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले तुमको पाई इंटू 3 पावर एक्स को वाई या कुछ मान लेना चाहिए, राइट? यस क्वेश्चन सर। विल स्टार्ट लुकिंग मच बेटर। cos y minus 2 cos square y plus 2 cos 4y minus cos 7y is equal to sin y plus 2 sin square y minus 2 sin 4y plus 2 sin, this is what? This is 3 times y, right? यस सर, 3। हाँ। Minus sin 7y, करेक्ट? यस सर। अब बस ये ग्रुपिंग्स वुपिंग्स करने हैं अच्छे से, और तो कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। ये cos स्क्वायर वाई को इस साइड लाओगे तो +2 बन जाएगा, राइट? यस सर। और ऐसा कुछ डायरेक्ट ग्रुपिंग हो नहीं रहा है, तो विल ब्रिंग द टर्म्स टू वन साइड नाउ। सो cos y माइनस sin y, ये यहां से हटा के इधर ले गए। 2 cos 4y प्लस 2 sin 4y और माइनस प्लस साइन 7y माइनस कॉस 7y माइनस 2 साइन 3y इज इक्वल टू 2, राइट? ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है, राइट? हाँ। हाँ सर। राइट, सो इसमें बस करेक्ट ग्रुपिंग्स करने हैं और कुछ है नहीं। मे बी दिस इज नॉट द मोस्ट ऑब्वियस ग्रुपिंग, वी शुड नॉट मे बी ग्रुप इट लाइक दिस, उससे कुछ कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगी। तुमको बस सोचना है कि किसको किसको साथ में रखना, दैट्स द होल थिंग। सो
Let's think about what is appropriate. Yeah. Yeah. Hmm. So what I would do is I would group cos y and minus cos 7y. ठीक है, ये और ये, और उसी तरह साइन y और साइन 7y. ओके, समझ ओके में आ सर। रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। क्यों? क्योंकि उसको कंबाइन कर सकते हैं, cos c minus cos d, sin c minus sin d, and I'm hoping that I will get good angles at the end. Then I'm left with these two and this one, right? So यस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ये हो जाएगा 2 sin c plus d by 2, so that will be 4y, 4 5। and यस। sin d minus c by 2, so sin 3y, right? 4 यस। और ये हो जाएगा 2 sin c minus d by 2, so 3y, and cos c plus d by 2, so 4y, right? Correct. यस सर। Now I have left this three terms. So plus 2 cos 4y plus 2 sin 4y minus 2 sin 3y equals 2. Right. तो उसके बाद क्या करेंगे? साइन 3y कॉमन ले सकते हैं क्या कहीं इसका? यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ वहाँ पे पे। भी है. ठीक है, सो कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बन के आ रहा है? 2 sin 3y common. I'm getting sin 4y plus cos 4y and minus 1, right? हाँ Correct. हाँ सर। हाँ सर। और देखो ये और ये में भी वही टर्म है, 2 कॉमन. दिख रहा है? अच्छा हाँ कॉमन है। बस हो गया क्वेश्चन. अब तो ऐसे कॉमन ले लिए और एक फैक्टराइजेशन बेसिकली हो गया ना. हाँ सर। ये हो गया 0. One solution will come from here, one solution will come from here, right? यस सर। At the end, you will have to put y is equal to pi into 3 power x also. हाँ। और फाइनली x के लिए सॉल्व करना है. तो यहाँ पे बोलोगे पहले sin 3y is equal to -1. So 3y is equal to n pi plus -1 power n into minus pi by 2. So इसमें बोलेंगे 3 times pi times 3 power x is equal to this stuff, right? यस सर। Pi will cancel from everywhere. You'll get 3 power x plus 1 is equal to n plus -1 power n into minus half, right? यस सर। Obviously, not all n will fit this because if it becomes negative and all, it's not good. 0 जैसे डालेंगे तो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल. नेगेटिव। हाँ। -1 डाल देंगे तो फिर भी नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा, राइट? यस सर। सो विल नॉट पुट नेगेटिव एंड ऑल. 1 डालेंगे तो शायद ठीक है. 1 डालेंगे तो क्या आ रहा है? 1 minus plus 3 by 2, that is fine, 3 बाई right? 2 हाँ। 0 is not possible, 1 is possible, right? हाँ। So we are going to get 1 onwards integers here. We can say then x plus 1 is equal to log base 3 of this, right? यस।
and n is greater than equal to 1, and then you can solve for x here. Similarly, you can solve this other equation also and solve for x. ओके Sin y plus cos 4y, sin 4y plus cos 4y is equal to 1. इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे a sin x plus b cos x को करते हैं, राइट? ओके ओके समझ में आ रहा है क्या स्टेप है यहाँ पे नेक्स्ट? हाँ सर हाँ स्क्वायरिंग वेरिंग नहीं करना है, रूट टू लेना है. हाँ रूट टू साइन ऑफ 4y plus पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, राइट? ओके हाँ उसके बाद तो जब भी a sin x प्लस b cos x हो, मोस्ट लाइकली यही होता है स्टेप, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट इट फ्रॉम अ टू डिफरेंट फंक्शंस हैं उससे एक फंक्शन बन गया, राइट? हाँ सर ओके, और क्या है डाउट? इसका 9th नंबर है Find the least positive angle measured in degrees satisfying this equation. Sine cube x plus sine cube 2x plus sine cube 3x. Sine cube 2x plus sine cube 3x is equal to sine x plus sine 2x plus sine 3x whole cube. Least positive angle measured in degrees. Okay. So basically, the condition is that a cube plus b cube plus c cube should be a plus b plus c whole cube. The only way, okay, so right. What I can say is expand तो कर ही सकते हैं, उससे कुछ कुछ आ जाएगा. I'm thinking if there is a better way to do it. One second. Let's group this and this, sin x plus sin 3x. So it will become 2 sin 2x cos x, right? यस सर Whole cube. You can take 2 sin cube 2x common. No, sin cube 2x common outside. Or maybe not. One second. Can we do something better here? 4 sin x cos square x हो रहा है. और यहाँ पे 2 sin x cos x. Sin cube 2x common. And I have 1 plus 2 cos x inside whole cube. Right? यस Okay. Uh, और इस साइड ये 3 टर्म्स. Okay, so we can do it like this. We can say sine cube x plus sine cube 3x is equal to this minus sine cube 2x. Sine cube 2x यहाँ पे कॉमन हो गया और ये हो गया this minus 1, right? यस Why am I doing that? Because I will use a cube minus b cube formula now. And I'm going to use a cube plus b cube formula, यस right? Sin x plus sine 2x 3x sin square x minus sin x sin 3x plus sin square 3x. और इधर हो रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला से ए माइनस बी में 2 cos x ही बचा, और फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो 1 plus 4 cos square x
plus 4 cos x plus 1. So 2 plus 4 cos square x plus 4 cos x प्लस 1 मैंने कर दिया है, प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 2 cos x, so 3, और 2 cos x is 6 cos x, राइट? ये हो रहा है 4 cos square x plus 6 cos x plus 3 inside. Okay, and this side I have this method is not working out. Something else has to be done. It is becoming too long, so let's think of something else. Least positive angle measured in degrees. So the thing is that the reason it is difficult is that एक टर्म के इक्वेशन में नहीं आ रहा है. यस सर। पिछले वाले केस में हमारा कॉस वॉस इधर आ रहा था और उस साइड कॉसेस नहीं थे. दैट वाज द इशू. जो पॉइंट इज कि हमको इसको एक वेरिएबल के टर्म्स में लाना है किसी तरह. ओके, सो लेट मी थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव अप्रोच. ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई करके फॉर्मूलाज यूज करके कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा. यस, बहुत लेंदी सर। कोई स्मार्ट तरीका ढूंढना है तो व्हाट आई विल थिंक ऑफ इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ, बिकॉज cos x plus I sin x is equal to e power I x, ये पता है ना? हाँ सर। So we can say 2I sin x is equal to e power ix plus minus e power minus ix, right? यस। Sin x को कैसे लिख सकते हैं? e power ix minus e power minus ix by 2, right? यस। तो sin x को ऐसे लिख सकते हैं. तो हम लोग क्या sin क्यूब x और ये सब सबको कर सकते हैं वैसे. यही सोचना है. Sin cube x will be e power ix minus e power minus ix by 2 whole cube. बेसिकली इसी टाइप के टर्म्स तीनों होंगे, बस आई एक्स की जगह 2x और 3x, राइट? हाँ सर। ओके, सो इस साइड में बाय 8 1/8 आ जाएगा और सम ऑफ क्यूब्स आ जाएगा. ऐसा और ऐसा ऐसा टर्म्स, राइट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। इस साइड ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या आ रहा है ये देखना है. Sin x plus this. So we can just add terms like this and it will be going 1/2 of e power ix minus e power minus ix plus e power I 2x minus e power minus 2ix. ऐसा, right? यस।
और इसका क्यूब करना है, तो 1/8 इसमें भी आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और इसका कैंसिल हो क्यूब जाएगा। इज इक्वल टू दिस, राइट। यस सर। अब हमारा ये चीज हो गया है कि अलजेब्रा हो रहा है अभी, और उतना कोई डिफिकल्ट अलजेब्रा नहीं है। ये क्यूब्स आर नॉट सो डिफिकल्ट, दीज क्यूब्स। व्हाई? बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab करेंगे तो कट जाएगा, राइट। हाँ हाँ। यस सर। मतलब बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड इट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टू प्योर अलजेब्रा नाउ, राइट। यस सर। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ये वाला साइड तो बहुत इजी है एक्चुअली। ई पावर आई 3x माइनस ई पावर माइनस आई 3x माइनस 3 ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स, राइट। इसी टाइप के टर्म्स है ना, यस सर। तीनों टर्म्स ऐसे ही हैं। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, ई पावर आई हाँ। 6x, ऐसा ही है सब। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो राइट, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। इस साइड में कैसे करेंगे कि ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर आई 2x प्लस ई पावर आई 3x और -1 बाई दोज टर्म्स है। एक्चुअली वही सोचना चाहिए, u -1 बाई यू स्क्वायर -1 बाई यू स्क्वायर, ये है ना सिचुएशन। अच्छा हाँ हाँ। u -1 बाई यू ये मैं। होल क्यूब प्लस यू स्क्वायर -1 बाई यू स्क्वायर होल क्यूब प्लस यू क्यूब -1 बाई यू क्यूब होल क्यूब, राइट। यस सर। वेयर u इज ई पावर आई एक्स, और इस साइड क्या है, u प्लस यू स्क्वायर प्लस यू क्यूब -1 बाई यू -1 बाई यू स्क्वायर -1 बाई यू क्यूब होल क्यूब, राइट। यस सर। तो यहाँ पे भी जो ग्रुप्स बन रहे हैं u -1 बाई यू, सब में से u -1 बाई यू फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट। हाँ हाँ। राइट, तो यहाँ पे भी u -1 बाई यू का तो फैक्टर आएगा ही। हाँ, बट इट विल स्टिल बी a little annoying to do. मुझे दिख रहा है कि ये एक 18 डिग्री इक्वेशन बन रहा है, राइट। यस सर। 9 का पावर डिनोमिनेटर में भी है, राइट। हाँ। 9। हाँ, 9 का पावर डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, राइट। हाँ सर। 18 डिग्री इक्वेशन बन रहा है, तो उसी से वो देखो ई पावर आई यू का 18 पावर टाइप का हो रहा है। मे बी दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच, but still like it is better than doing the trigonometric simplification. But I have missed out on something. Maybe I should use complex numbers in a slightly better way. Hmm, 1 second. Okay, I'll think about it. If I come up with a solution, बता दूंगा। ओके सर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कोई एक कुछ ट्रिक छूट रहा है जिसके कारण नहीं हो रहा है मुझे। ओके सर। बट डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन इज ऑब्वियसली नॉट द राइट वे। वैसे में तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ सर, बहुत लेंदी है। हाँ, तो कोई स्मार्ट स्मार्ट चीज सोचनी है, वो देखता हूँ, तो मिल जाएगा तो बता दूंगा। ओके सर।
have you started the solution of triangles and all? हाँ सर, उसका तो बहुत सारा प्रूफ भी कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो भी एलन में रिजल्ट्स हैं उसके प्रूफ्स होने चाहिए, आने चाहिए। हाँ सर। तो वो सब सब ट्राई करो थियोरी। अगर अगली क्लास में विल डिस्कस द थियोरी फॉर दैट इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग, एनीथिंग दैट यू डोंट नो और डोंट अंडरस्टैंड और समथिंग। एंड if you are done with the proofs then start the exercises. इसमें प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। you need to do the proofs first though. Proofs, and if you can't figure out the proofs then SL Loni chapter 15 is the source. Most of the questions in the Allen book will be somewhere related to some SL Loni problem. यस सर। Okay, so उस पर ध्यान दो और उसको करो अटेम्प्ट। और इस वीक में 1 सेकेंड, इस वीक में अब हम लोग टेस्ट पेपर शुरू करेंगे करना। तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट पेपर्स को अभी हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि फुल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है टाइम में, ठीक है। हाँ सर। ऐसे करना है कि उसके क्वेश्चंस को ट्राई करने हैं। तुम्हारा ऑलरेडी 11th का तो हो ही चुका है, जो जितना जानते हो मैथ उतना तो अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। हाँ सर, वो तो कर सकते। सो क्वेश्चन रिपोर्ट 9 एंड 11 तुम्हारे शेयर ड्राइव में ये सब होगा क्वेश्चंस। यस। 9-11 एक्चुअली 9-11-15 तीन पेपर्स करो, दो से ज्यादा है करो, because half of the paper might be stuff that you don't know. So what I want you to do is the maths papers, maths part of it. ओके। मैथ्स पार्ट के सेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं ट्राई, जितना हो सके करना है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डाउट्स है। जो भी टॉपिक्स तुमको आता है उतना अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। ओके। वही करना है, इसको प्रैक्टिस मटेरियल की तरह से लेना है। और ये तीनों टेस्ट पेपर्स को इस वीक में करना है। सो फ्रॉम नाउ टिल नेक्स्ट वीक का फ्राइडे तक। ओके। समझ रहे हो ना। हाँ सर। और कल सुबह से फिजिक्स की क्लास शुरू होगी। कल सुबह हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। यस ओके, फाइन, दैट्स ऑल सर, फॉर नाउ। मतलब नेक्स्ट क्लास तक हमें एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करना है और ये क्वेश्चन रिपोर्ट, हाँ, मतलब सॉल्यूशन फ्राइडे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इज द टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास। बट उसमें पूरा करना जरूरी नहीं है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूरा तुम खत्म कर लोगे नेक्स्ट क्लास। बट ओके। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू शुड बी डूइंग इट सीरियसली। एंड जितना होगा उसके डिस्कस करेंगे, जो भी थियरी बचा है या प्रॉब्लम्स जितने हुए हैं, क्या दिक्कत आ रही है, राइट। यस सर। नेक्स्ट मैथ क्लास में ये डिस्कस होगा। मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओके। मैथ क्लास में विच विल प्रोबेबली बी, तुमने शेड्यूल अगर देखा होगा तो फिर तुमको आइडिया होगा किस दिन होगा। हाँ सर। आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे है। फ्राइडे। तो हम लोग ने मैथ्स के क्या सेट किया था। मैथ्स का शेड्यूल है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो मंडे की क्लास, वेडनेसडे की क्लास में क्वेश्चन रिपोर्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके, फाइन, टुमारो मॉर्निंग विल स्टार्ट विथ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें HCV चैप्टर 29 थियरी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद बाकी और भी काफी क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक है। हाँ सर। HCV के अलावा some questions I will be sharing once we have done HCV. So right now you just focus on doing HCV and understanding that. कल थियरी डिस्कस करेंगे अगर कुछ डाउट्स वाउट्स है, और नहीं तो फिर we'll start the problems. ओके सर। Okay, that's all for now. I'll see you tomorrow then. थैंक यू सर। Mhm.